Good evening, everyone. I extend a warm welcome on behalf of India Policy Foundation to each and everyone who has joined today's webinar on the Uniform Civil Code. The Uniform Civil Code, as we all know, is embodied in Article 44 of the Indian Constitution and is part of the directive principles of state policy. It has remained a dead letter for long. A look at the Constituent Assembly debates would reveal that the ideas of unity and equality have been at the core of what India represents. In fact, the majority opinion at that time was in favor of a uniform civil code. Yet today, when the issue has finally become a part of the public discourse, it is being termed a direct assault on certain religions and its practices. It has also been termed a targeted attack on minorities. But the fact remains that the Uniform Civil Code is exactly what it says it is. It will uniformly affect all communities, be it Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, or Parsis. I believe that what we need to focus on while discussing Uniform Civil Code are the inherent issues of ensuring gender justice and national integration, which seem to be getting overlooked. It's interesting to note that today India has almost 200 to 300 personal laws, and some of them are highly discriminatory in nature. The two main arguments that we often hear being raised are that a common civil code will infringe on the fundamental rights given in Article 19 and it is unfair to the minority communities. In today's webinar, we hope to address some of these issues, especially we're looking forward to discuss the need for a uniform civil code in the present times. How exactly will a uniform civil code affect different communities? What will be the impact if it is implemented? And how can one address the concerns and criticisms? Now, I request Dr. Aloka Sharma ji to take forward this discussion. First of all, I would like to thank Dr. Kuldeep Ratnuji for giving me this opportunity to introduce the topic for today. Now, UCC, as you all know, that we are discussing so many things regarding UCC, but UCC has roots in the Constitution itself. Nowadays, we hear this thing that it is directive principles under Article 44. But before that, I would like to take you to the constitutional debates on this topic. And in the constitutional debates, when we see the debates on Uniform Civil Code, it was very much contended by Dr. B.R. Ambedkar that this should be part of the fundamental right. And a lot of debate was there on this aspect that this should be implemented with our constitution only, and why we should postpone it. But there are many members from the minorities, especially the Muslim minority at that time. Now I should not say that they are the minority; they are the second majority. But at that time, because as we all know that the country was divided, partition was going on, and it was a critical time for people. So few representatives from Muslim community also participated in this debate. So very few of them have rejected this concept of UCC, but many scholars, many representatives from Muslim community, they favored that this uniform civil code will definitely be in the country, but at a later stage when the conditions will be suitable for that. And for the last 75 years, we are waiting for those suitable conditions when those conditions will happen in the country and we can have a uniform civil code for all people. Now, as far as I am concerned, I always see uniform civil code from the perspective of a woman. And I emphasize in all my writings, which I have done for the UCC, that the basic purpose for this aspect is that we should have a uniform civil code is regarding the gender equality. Because I have seen many laws, because being a professor of law, I have come across many laws, and all laws are discriminatory against women as such. Of course, in Hindu law, we have seen many amendments from time and again, because Hindu is a community which we have, of course, some kind of resistance from this community, but ultimately it was easy for the parliamentarians to impose, or I should say, do reforms for the community of Hindus. So the Hindu personal law is almost modified, and it has all kind of modern concepts relating to gender equality.
because it talks about guardianship, it talks about adoption, it talks about equal property rights, succession, it talks about more rights for women as far as divorce is concerned. So Hindu male has less grounds for taking divorce, but females are having additional divorce for getting divorce in their marriage. So Hindu law is, we can say, that is a kind of making pace with the changing time. But all other laws, be it Christian law or Muslim law or Parsi law, they are not at the pace, they are not making pace with the changing times, and lot of grounds are there where women are discriminated. So I think that today is the right time that we should think about implementation of UCC, because it will give a kind of uniformity in the implementation of all laws, and ultimately there will be a kind of peace and solace in the society, that when all of us are having equal laws, so there won't be any issues like we have seen in the recent past, that if a Hindu male wants to remarry, then they, for the namesake, they convert themselves into a Muslim and solemnize a marriage under the Muslim law. It's a contract. So all kind of voices can be removed if we have the uniform civil code. Moreover, the Indian judiciary, many times for the last so many years, they are emphasizing, pressurizing the governments to have the uniform civil code, so that many kind of discrimination in the implementation of laws can be removed. So I say that UCC is not the demand of today's, but it is a constitutional mandate. And being the citizen of India, it is the duty of all of us to accept UCC in a form where one nation, one law can be implemented. Ma'am, I have a question to ask because you said that Yes, please. at the heart of this is gender justice. There was recently a letter that was made public that was written by All India Democratic Women's Association to the Law Commission. In it, it said that uniformity cannot be equated with equality and justice for women. They had also opined that uniformity will not stop discrimination. What is your take on this, especially since women have had no role in the decision making process when it came to the drafting of personal laws? Like generally when we talk about the constitution, we have article 14. Article 14 only talks about the formal equality, so it says equality before law and equal protection of law. Now from where we have the provisions for reservation, from where we have special provisions which we can make for women or for the disadvantaged people. So equality does not mean that equality among unequals. That is why we have all these kind of provisions in our constitution. So when we talk about the uniform civil code as from the perspective of the gender equality, I never say that you see, when we have a code, all of us should follow same kind of procedure, same kind of formalities, because you see, we have to think from the perspective of the prevailing culture and tradition as well. Now, the when we say law, so why women cannot feel that if there should be only monogamy, why all women will not be happy for that? Or if we say, when we talk about that all women can have the right for adoption, or they are the natural guardian of their child, so in these kind of thing, or they have the equal right of succession. And what else is left? We have the personal laws are about only marriage, divorce, maintenance, adoption, and guardianship, and of course succession. So these 5 6 points are there which are relevant for the perspective of the personal laws. So if we have equality in all these laws, I don't think that any women will be discriminated on these grounds, because these are the basic things. And when I say that we must have a uniform civil code in personal laws, you see, we never think about, at least I never think about changing of the tradition or solemnization of marriage, the style of solemnization. So if in Hindus we have the
performance of Satpati, and without Satpati, that no marriage can held. Or in Muslims, if they take the consent of a woman before the marriage, or in Christians, they go to church. So all these formalities can be very well in place. The question is only about the rights. They should, after the marriage, if the marriage is registered, all will be treated equally as far as the law is concerned. So there is no question that everybody will take saat feras, or everybody will say consent. So that is a different thing, and different communities can have the solemnization of marriage as per their own tradition, right? And like these, like, why equality cannot be there if the laws will equal? And interesting fact, I must tell that in our country we have 95% law uniform. So when we have 90% law uniform, be it commercial laws, be it civil laws, be it any other law, so why can't we have only personal laws as the uniform laws? And Article 13 of the Constitution specifically says that any law at the time of the enactment of the Constitution, any law which is violative or discriminatory against the chapter 3rd, that is fundamental right, that should be declared as void. So deliberately, because of the all kind of politics, they have kept personal laws out of the purview of Article 13. Why so? There is no justification for the same. And in this view, I would like to, place one more point, that when Shahabano case was decided by Honorable Supreme Court, the Supreme Court dealt in detail with different, books, the authorities of Muslim law on that, and nowhere Supreme Court wrote that this discrimination regarding the law of maintenance for women is clearly against Article 13. There was no need to discuss anything else, but we have to test each and every law on the test of Article 13, where anything violative of chapter 3rd, that is the fundamental rights, should not stand in the country. So Article 13 is the only way. And I hear that people are talking about Article 25, 26, the right to religion. Right to religion has nothing to do with this. Right to religion only talks about the way you want to practice your religion, the way you want to propagate your religion. And it is not the absolute right, of course. They are all with the reasonable restriction clause, right? So there is no confrontation in right to religion and uniform civil code at all. People, if they say, they are misguiding the countrymen that there is any violation of right to religion in this aspect. Dr. Seema Singh has joined the webinar. Dr. Seema Singh is an assistant professor of law, Delhi University. She did her LLB and LLM from Lucknow University and PhD from Jamia Millia Islamia University in Forensic Science. Her core area of interest is constitutional law. She was awarded the Kamal Sharma Award for Academic Excellence in 2021. She is member of Academic Council, University of Delhi. She is an advisor to the National Commission for Scheduled Tribes and has authored and edited 3 books. She is also an activist who has taken up many important causes and has been part of several television debates. It is indeed an honor to have someone as accomplished as Dr. Singh to address us today. We look forward to hearing your views on Uniform Civil Code. And first of all, I'm extremely grateful to you that you have given me this opportunity to express my view over such a relevant topic, which is very contemporary also, and that is uniform code. So, uniform civil code, so much debate and discussions are going on over the uniform civil code. Few people are supporting it, few are opposing it. But I think before discussing in the contemporary time, it is very much important to know about the history. So, in my entire discussion, I am going to divide it into two parts. The first one is before the commencement of the constitution, and the second one is the post commencement of the constitution. So there are so many things which are very important that we all know that before the arrival of any other religious community to India, majority of the Hindu community, जैसे कि बाद में हिंदू कहा गया, they used to be governed according to their own customary laws.
So, after the Arabic invasion and after the arrival of the Christianity, the people belonging to different religious community, they started residing in India. और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो एक इसमें काफी समय तक जो इस्लामिक लॉ था वो भी अनकोडिफाइड था. इट वाज फर्स्टली कोडिफाइड बाय औरंगजेब. औरंगजेब ने इसको सबसे पहले कोडिफाई किया था और इसका नाम रखा था फतवाए आलमगीरी. तो फतवाए आलमगीरी में सबसे पहले ही इनवाइटेड 500 मुस्लिम स्कॉलर्स एंड दे कोडिफाइड दिस इस्लामिक लॉ और द मुस्लिम लॉ. बट एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फतवाए आलमगीरी में दे कोडिफाइड सर्टेन थिंग्स, बट उसके बावजूद भी लंबे समय तक इवन प्रेजेंटली देयर आर मेनी Muslim, community or groups who still follow Hindu customary laws. तो यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअली जो शरीयत एक्ट 1937 की बात की जा रही है वो एक्चुअल में आया कहाँ से. तो आप ये देखेंगे कि आफ्टर दिस म्यूटिनी ऑफ 1857 जो 1857 में हुआ, बिकॉज व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया दे फाउंड इंडिया इज एज अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री. तो पहले तो उनके लिए ये समझना मुश्किल था कि ये एक देश है. उसके बाद 1857 की म्यूटिनी जो फेल हुई, दैट हैज कंप्लीटली शेकन द ब्रिटिश सिस्टम आल्सो, एंड नाउ दे स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट दे कैन नॉट कंटिन्यू और रूल दिस कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. तो उन्होंने एक नया हिसाब बनाया. जो हिसाब था वो ये था टू आइडेंटिटीज. तो प्रमोशन के लिए आइडेंटिटीज के दे ट्राई टू पोर्ट्रे डाइवर्सिटी एज डिफरेंसेस, but deliberately they kept Muslim ousted from these two enacted legislation. इनको बाहर रखा था. अब सवाल ये है कि इनको बाहर रखने का रीजन क्या था. तो पहली बात तो ये कि जो दो लेजिस्लेशन बनाए गए थे दे वर एनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिश्चियन लॉ. बाहर रखने का एक पर्पस ये था कि somehow they were neutral also in a way, so somebody wanted to govern through this law, they can be governed, but exemption was given only to the Muslims. तो मुस्लिम को exemption देने का रीजन क्या था. मेन रीजन ये था कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी को मुस्लिम आइडेंटिटी के रूप में ही प्रमोट करना चाहते थे. और इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 1937 में जब इन्होंने शरीयत एक्ट बनाया, एंड इन शरीयत एक्ट दे हैव एक्सप्रेसली मेंशन कि मुस्लिम लॉ में कभी भी किसी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा. सो बेसिकली दिस शरीयत एक्ट वाज अ बिग बिग विन सिचुएशन फॉर मोहम्मद अली जिन्ना. And Jinnah was basically, pressurizing Britishers to enact this particular legislation. तो आप ये कह सकते हैं कि शरीयत एक्ट 1937 तक मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम जो थे वो जो कस्टमरी लॉ फॉलो करते थे वो हिंदूज के थे. और इसीलिए आप ये देखेंगे कि इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट देयर वाज अ डिस्कशन कि नाउ वेदर देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड और नॉट. तो इसमें दो चीजें निकल करके सामने आई थी. अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्टेटमेंट को देखते हैं तो उन्होंने बोला था कि मेजोरिटी ऑफ द कंट्री इज स्टिल गोइंग टू बी गवर्न फॉर द फ्रॉम द कॉमन सिविल लॉ इन ऑल द मैटर्स ऑफ द सिविल रिलेशनशिप. पर साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और बोली, बिकॉज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाज इन द फेवर ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड. और उसका एक मेजर रीजन ये था, उनका ये कहना था कि मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स हु आर लिविंग इन इंडिया दे आर कन्वर्टेड हिंदूज. वो कन्वर्टेड है मतलब हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, तो उनकी जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं वो अभी भी वही है जो कि हिंदुओं की थी. तो ही सेड दिस इज द बेस्ट टाइम टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया. और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो अल्लाह अय्यर या के एम मुंशी जो है उन्होंने भी इसका कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट किया. और जब आप के एम मुंशी को देखते हैं तो उन्होंने इसमें एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग बोली. उन्होंने बोला कि कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इस्लामिक भी हैं और नॉन इस्लामिक भी हैं जहाँ पे कि इस्लामिक लॉ कोडिफाइड है और वहां पे उन्होंने इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है. तो अगर हम इंडिया में भी इस टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो दैट कैन बी समथिंग which is very progressive in nature. But somehow Pandit Nehru was not in the favor of UCC at that point of time. And one of the very important reason which was given by Pandit Nehru was the main issue was India was divided on religious lines. तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के रूप में एक नया देश जो है वो एग्जिस्टेंस में आया. लेकिन जो भारत में मुसलमान रह गए उनको लेकर के हमेशा से उस समय ये था कि इनको ये एक एलिनिएटेड ना फील करें. ये एक माइंडसेट जो है उस समय चल रहा था. और एलिनिएटेड ना फील करने का एक बड़ा रीजन ये था कि मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बाइकआउट कर दिया था. तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक मानसिक दबाव में भी थी
और वो ये दिखाना चाहती थी कि मुस्लिम लीग के एब्सेंस में भी हम जो है वो मुस्लिम्स के राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दैट वाज द मेन रीजन कि उस समय इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह तो दी गई, लेकिन इसको जगह दी गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में, और इसको छोड़ दिया गया कि दिस इज नॉट द राइट टाइम बिकॉज द कंट्री हैज डिवाइडेड एंड द इंटरनल कंडीशन ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो भविष्य के लिए हम इसको छोड़ते हैं, और भविष्य में जो भी सरकारें आएंगी वो ये देखेंगी कि इस उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड कब बनाना है। बट बिकॉज रिमेम्बर दिस वाज द पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये बिल्कुल क्लियर था कि सही समय आने पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ये स्टेट्स को बनाना ही बनाना चाहिए। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि मिस्टर BN राव, हु वाज द एडवाइजर टू ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसे ही संविधान सभा जब काम कर रही थी तो साइमल्टेनियसली इन द ईयर 1950 ही प्रपोज्ड हिंदू कोड बिल। एंड हिंदू कोड बिल जो था उसको उस समय का बड़ा प्रोग्रेसिव लॉ माना गया, और प्रोग्रेसिव लॉ मानने का मेन रीजन ये था कि उनका ये कहना था कि थ्रू द हिंदू कोड बिल वी आर गोइंग टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ हिंदू वुमेन। और अगर उस समय की सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज सम स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट अगेंस्ट द कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 1950 में आया और ये एक कोडिफाइड बिल के रूप में आया था, लेकिन प्रेशर इतना था, विरोध इतना था कि इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। मैरिज एक्ट अलग हुआ, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस अलग हुआ, इस तरीके से इसको डिवाइड करके प्रेजेंट किया गया। और जो रिसेंटमेंट का एक रीजन था वो ये भी था कि व्हाई यू आर कोडिफाइंग ओनली से द हिंदू कम्युनिटी हैड एक्सेप्टेड इट, एंड अल्टीमेटली इवन presently it is evolving gradually by the Supreme Court and by the Parliament also। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये उठा है कि हिंदू कोड बिल तो आप लेकर के आ गए, लेकिन हिंदू कोड बिल लाने के बाद अगर आज के समय में हम देखते हैं तो लगभग सारे जो लेजिस्लेशन हैं वो कोडिफाइड हो चुके हैं। क्रिश्चियन लॉ भी कोडिफाइड है लार्जली, आपका पारसी लॉ भी कोडिफाइड है। जो मेन आपका एक मेजोरिटी रिलीजन छूटता है वो है आपका इस्लामिक लॉ। अब इस्लामिक लॉ में एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि देखिए मुस्लिम्स आर द largest minority of India. Their total population is somewhere around 16% of the entire population. अब 16% का 50% आप मुस्लिम महिलाएं मान लीजिए। तो अभी जो इशू चल रहा था वो इशू इसमें क्या है कि the women belonging to different religious communities are going to be governed according to their own personal laws and there is no uniformity। तो यूनिफॉर्मिटी ना होना, that is fundamentally some Muslim women they are at extremely disadvantageous position and some are at extremely advantageous position। So you know you are going to create a discrimination between women and women on only and only on the basis of religion। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, देखिए इसमें एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि जो शरीयत एक्ट था that was enacted in the year 1937 when constitution was not there, but when the Hindu law was codified then at that point of time constitution was there। तो इसमें हमें इस अंतर को समझना पड़ेगा कि जो कोडिफिकेशन आपके आजादी के बाद हुए, संविधान के आने के बाद, वहां पे इस चीज का ध्यान रखा गया दैट द देयर शुड नॉट बी एनी वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। लेकिन जो आजादी के पहले का था जैसे शरीयत एक्ट 1937 है, यू कैन से ऑब्वियसली दैट दैट इज आल्सो कोडिफाइड लॉ, but that is not according to the spirit of the constitution because at that point of time there was no constitution। जब संविधान तो संविधान के देखे, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ एक संवैधानिक ढांचे की बात होती है और हम ये कहते हैं कि हर चीज संविधान के पर्सपेक्टिव में पढ़ी जानी चाहिए। तो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी कहीं ना कहीं संविधान के पर्सपेक्टिव से हमें समझना होगा। तो समझने के लिए द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द प्रियम्बल बिगिंस विद वी द पीपल ऑफ इंडिया। So whatever has been kept within the constitution and in the preamble, that is the collective responsibility of each and every citizen of this country। और जब आप उसकी शुरुआत करते हैं तो वो शुरू होता है सॉवरेनिटी से, खत्म होता है फ्रेटर्निटी पे, साथ ही वहां पे सेक्युलर टर्म भी यूज है। बीच में आपकी अगर आप देखेंगे तो आपकी लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी की सारी बातें की गई हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको कि हमेशा मुझे लगता है कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया गया है, डेफिनेटली इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी और हम यूनिफाइड हैं इन द नेम ऑफ द नेशनलिज्म एंड नेशन। राष्ट्र हमें एक करता है फिर भी हम एक डाइवर्सिफाइड तरीके से रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी चीज को
ब्रिटिशर्स ने यानी हमारी डाइवर्सिटी को उन्होंने आइडेंटिटीज के फॉर्म में क्रिएट करके प्रमोट किया, और अल्टीमेटली उस डाइवर्सिटी से जो हम आइडेंटिटीज में आए, उसका अल्टीमेट परिणाम ये हुआ कि हम जो है वो डिवाइड हो गए दो देशों के रूप में। और इसीलिए जब आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट देखते हैं तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत सारे मुस्लिम मेंबर्स ने भी इसका सपोर्ट किया था कि अब हमें संविधान में कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना चाहिए जिससे फिर से आइडेंटिटी क्रिएशन हो, रिलीजन का प्रमोशन हो, और फिर हम रिलीजन के नाम पे कहीं ना कहीं जाकर के बटे। और इसीलिए जब हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी डाइवर्सिटी तो रहनी चाहिए, लेकिन प्रमोशन ऑफ आइडेंटिटीज एटलीस्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कास्ट नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेटर्निटी इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली फंडामेंटल। फ्रेटर्निटी इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली फंडामेंटल। और फंडामेंटल ये जो है ये ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और जरूरी है कि हम रिलीजियस जो कम्युनिटीज हैं उनको रिलीजन के नाम पे स्टेट प्रमोट ना करे, और अगर स्टेट रिलीजन के नाम पे उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करता है तो फिर ये सॉवरेनिटी के भी एंटी है, ये फ्रेटर्निटी के भी एंटी है, और अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ द नेशन भी है। तो ये इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज अबाउट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? पर्सनल लॉज देन डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वली प्रोटेक्टेड। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन है जिनको कि सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए, बट स्टिल फ्यू ऑफ देम आर नॉट कवर्ड। जैसे मान लीजिए आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, आपका पॉक्सो है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है। बहुत सारे जैसे इस्लाम का एक प्रॉब्लम ये है कि वो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ द एज ऑफ मैरिज इज द एज ऑफ प्यूबर्टी, सो द प्यूबर्टी कैन बी एट द एज ऑफ 12, एट द एज ऑफ 13। तो अगर 12, 13, 14 जो कि प्रैक्टिस में है, अब अभी आपने देखा हैदराबाद में बहुत सारे केसेस है ट्रेवलर मैरिजेस का, कि सऊदी अरेबिया से आते हैं 50-60 साल के जो शेख होते हैं, वो 12-14 साल की लड़कियों से ट्रेवलर मैरिज करते हैं। ट्रेवलिंग मैरिज का मतलब है जब तक वो भारत में रहेंगे तब तक वो शादी चलेगी, और जब चले जाएंगे तो फिर वो शादी टूट जाती है। बट यू नो दिस इज ऑल्सो इट अमाउंट्स टू यू नो द वायलेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट आपको प्रोहिबिट करता है कि आप बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ किसी भी इस तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल लॉ की बेसिस पे वो कहते हैं कि हमारी शादी जो है वो वैलिड है। तो अब आप ये बताइए कि एक जो न्यूट्रल लेजिस्लेशन है, जो एक सेकुलर लेजिस्लेशन है, जो हर बच्चे को प्रोटेक्शन दे रहा है, उससे एक कम्युनिटी का बच्चा बाहर हो गया तो उसको हमने क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया? दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उस बच्चे के राइट टू लाइफ का क्या होगा, उस विमेन की राइट टू डिग्निटी का क्या होगा जिसको कि हलाला को प्रैक्टिस करके तलाक दिया जाता है, फिर हलाला को प्रैक्टिस करके उससे दोबारा निकाह किया जाता है। मैं बार बार यहाँ पे इस्लामिक लॉ को यूज कर रही हूँ, इसमें मेरा सिर्फ एक इंटेंशन ये है कि बाकी जो कम्युनिटीज है उनमें, रिलीजियस कम्युनिटीज है उनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, माइनर माइनर से डिफरेंसेस है, लेकिन एक जो कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा जो है अभी भी इन सेकुलर लॉज के प्रोटेक्शन से अछूती है, वो मुस्लिम महिला है। तो सवाल ये है कि जब हमारा संविधान का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 इक्वालिटी की बात करता है और विमेन को स्पेशल प्रोटेक्शन देने की बात करता है, तो क्या एक इतनी बड़ी माइनॉरिटी पॉपुलेशन की 50% पॉपुलेशन को छोड़ करके, जिनकी संख्या करोड़ों में है, क्या ये देश आगे बढ़ सकता है? और दूसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है उठाया जाना चाहिए, और वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि मुस्लिम कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी, जैसे मैंने उसमें बताया कि हिंदू कम्युनिटी ने विरोध किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई कम्युनिटी ये कहती है कि हम जिस हालत में हैं हम उस रिग्रेसिव अप्रोच के साथ ही सेटिस्फाइड हैं और हमें नहीं चेंज होना, हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें उनको चेंज करना चाहिए? तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रोग्रेसिवनेस या प्रोग्रेसिव थॉट जो है, that is also inculcated in the spirit of the constitution. So anything which is regressive in nature, even if it is acceptable by the majority, that should not sustain in the same way because it is against the fundamental philosophy of the constitution. तो अगर आप पूरा का पूरा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड देखोगे तो इसका जो आपका मेन जो सेंटर या एपी सेंटर बनता है वो है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, right to equality, gender justice, and obviously up to a certain extent, right to choice of a woman. Because if you are going to marry a girl at a very young age, at the age of 12 or 13,
she doesn't have any choice. So because these things, the issue of the constitutional morality, equality, right to life, dignity, each and every aspect of woman, that is going to be covered under this यूनिफॉर्म सिविल कोड. इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और है जिसको लेकर के मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए. अगर हम पूरा एक ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं कि दुनिया के जो और देश हैं वहां पे क्या क्या स्थिति है, तो इसमें क्योंकि देखिए इसमें एक चीज बराबर बोली जाती है कि जो ये हमारे रिलीजन में एक तरीके का इंटरफेरेंस है. इस चीज को कई बार बोला जाता है. तो यहाँ पे हमें ये भी बात सोचने की जरूरत है कि आप 1947 में पाकिस्तान बना और 1961 में उनका इस्लामिक हो चुका था. बांग्लादेश में कोडिफाइड इस्लामिक लॉ है, सीरिया में है, इराक में है. मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम हैव देयर ओन कोडिफाइड लॉ. और जो भी उनके कोडिफाइड लॉज हैं उसमें आप खास बात ये देखेंगे कि द मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज फिक्स. इन पाकिस्तान इट इज 18 फॉर गर्ल, इन बांग्लादेश इज 18 फॉर गर्ल. तो कई मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज में ये 18 या 16 साल लड़कियों के लिए प्रिस्क्राइब है और 21 साल लड़कों के लिए प्रिस्क्राइब है. बट रिमेम्बर इन इंडिया, there is no such minimum prescribed age for Muslim boy or Muslim girl, and I know that several cases are pending before different high courts जहाँ पे उन्होंने बोला कि लड़की की शादी अगर निकाह जो 15 साल या 13 साल में भी हो गया, then according to Islamic law that is valid because the girl is in the age of puberty. तो अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि क्या एक देश में हम अलग अलग विधान से चलेंगे? एक कम्युनिटी या कुछ कम्युनिटी रिलीजियस इम्यूनिटी इस बात पे ले सकती है क्या कि हमारे ऊपर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट नहीं लगता, हमारे ऊपर पॉक्सो नहीं लगेगा, हमारे ऊपर जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट नहीं लगेगा? और अगर इस तरीके की चीजों को हम प्रमोट करते हैं तो क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक देश में अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग विधान है? तो ये एक बहुत ही मतलब आप मान के चलिए कि इट्स अ वेरी थॉटफुल सिचुएशन. और इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें एक स्केप रूट जानबूझ के पकड़ा गया. और वो कौन सा स्केप रूट पकड़ा गया? अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आर्ग्यूमेंट देखेंगे तो हर जगह उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया है. एंड आई एम वेरी श्योर दैट वंस द यूसीसी इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, अगेन इट इज गोइंग टू बी चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड अगेन दे आर गोइंग टू रेज द सेम पॉइंट. और वो पॉइंट क्या है? उनका ये कहना है कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में जो टर्म लॉ यूज किया गया है उसमें पर्सनल लॉ नहीं है. So what they are saying कि through the personal law, if we are violating the right of equality of women, then that cannot be challenged before the court. अब इसमें देखिए, इसमें जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है वो क्या है कि देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ इनकंसिस्टेंसी है. कुछ जजमेंट में उन्होंने बोला कि नहीं, पर्सनल लॉ आर्टिकल 13(3) में इंक्लूडेड नहीं है. तो थ्रू द पर्सनल लॉज if any religious community is violating the rights of the woman, then that cannot be reviewed by the judiciary. Recent सायरा बानो का केस आया जिसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. वहां पे उन्होंने लॉ है ये, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि थ्रू द पर्सनल लॉज you can violate fundamental right of any person belonging to your community. So this is a very positive development. और उसके पहले भी अगर हम देखेंगे कि what was the approach of the Supreme Court, then Supreme Court has followed a very consistent approach. हमने देखा शाह बानो का केस आया था. अब आप देखिए उसमें जो मेंटेनेंस का इशू है, अब आप ये देखिए कि अगर एक मुस्लिम लेडी जो है उसको अगर तलाक दिया जाता है तो एज पर द मुस्लिम लॉ ओनली अप टू द पीरियड ऑफ इद्दत उसको जो है वो मेंटेनेंस मिलता है. ठीक है, जिसमें 3 साइकिल्स की बेसिकली बात की गई है जस्ट टू चेक द पैटर्निटी. अभी यहाँ की इशू ये आता है कि अगर उसी को अगर आप किसी और रिलीजियस कम्युनिटी की महिला से कंपेयर करिए, देन शी हैज सो मेनी राइट्स. आपका सेक्शन 125 सीआरपीसी है. हिंदू में तो आपका हिंदू में तो आपको बहुत सारे राइट दिए गए हैं. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक महिला जो शाहबानो का जैसे केस था कि शी वॉज अ वेरी शी वॉज इन 60s, आई थिंक लेट 60s व्हेन शी वॉज डिवोर्स. अब वो कहाँ जाएगी अगर इस उम्र में किसी महिला को तलाक दे दिया जाता है? तो इसीलिए चाहे शाहबानो का केस हो, चाहे सरला मुदगल का केस हो, चाहे लिली थॉमस का केस हो, चाहे आपका जॉन वेलमटम का केस हो, चाहे अभी आपका सायरा बानो का केस हो, इन सारे के सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंट अप्रोच रखी और हर जगह उन्होंने बोला है कि भाई, उन्होंने सरकार से पूछा कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों लागू नहीं करते हो? तो ये सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्टिन्यूअसली इसको सपोर्ट किया है.
लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, या जैसे अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कह रही है कि हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये एक इंटरफियरेंस है। ये इनका दूसरा आर्ग्यूमेंट है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या इनका इंटरफियरेंस है क्या? तो इसमें बड़ी जो आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टर्की, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह इस्लामिक लॉ कोडिफाइड हो गया। और जब ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दूसरे देशों में रहते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज में ये वहां के कॉमन सिविल कोड को फॉलो करते हैं, ना कि अपने पर्सनल लॉज को। और एक चीज आप याद रखिएगा कि जब आप रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, तो रिलीजियस फ्रीडम का मतलब होता है आपके वो राइट जो कि आपके रिलीजन से इस तरीके से इंटैक्ट है कि उनसे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जब आप आर्टिकल 25 पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 25 इज नॉट अ एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट, बट दैट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। और उसमें पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ है, मॉरलिटी है, और साथ ही साथ है अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आल्सो इंक्लूड्स आर्टिकल 14, 15 एंड 21। तो आप अगर ये कहते हैं कि आपकी रिलीजियस फ्रीडम में इंटरफेरेंस है, तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपकी जो नॉन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, या जो सेकुलर एक्टिविटी की रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, या जो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 या 21 को वायलेट करती हैं, उनको स्टेट रेगुलेट कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका पर्सनल लॉ है, एक्चुअल में वो आपका रिलीजियस फ्रीडम का पार्ट नहीं है। अगर वो आपका रिलीजियस का इसेंशियल पार्ट है, तो फिर इस्लामिक कंट्रीज ने उसको कोडिफाइड कैसे किया? अगर आपके रिलीजन का वो इसेंशियल पार्ट है, तो बाकी जो सेकुलर कंट्रीज है वहां पे आप कैसे वहां के सिविल लॉ को फॉलो कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट द इसेंशियल पार्ट ऑफ योर रिलीजन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हो, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में नॉर्मली वो चीजें आती हैं जो एक इंडिविजुअल और ऑलमाइटी के रिलेशनशिप को गवर्न करती हैं। यहाँ पे जब आप पर्सनल लॉ की बात कर रहे हो, तो ये आपके इंडिविजुअल और ऑलमाइटी का रिलेशनशिप नहीं है। ये जो रिलेशनशिप है, दो इंडिविजुअल का रिलेशनशिप है, या दो से अधिक इंडिविजुअल्स का रिलेशनशिप है। इसमें हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ यानी दादा दादी, माता पिता और बच्चे हो सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक फैमिली यूनिट की बात कर रहे हैं, जिसको कि आप एक लेंस से देखना चाहते हैं, जो कि एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है। तो ये कहना कि इसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकता या ये अनअमेंडेबल है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर अनअमेंडेबल होता तो इस्लामिक कंट्रीज में इसमें अमेंडमेंट होता, ये संभव नहीं था। तो अगर आप ये कह रहे हो कि इंडिया में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इंडिया कैन नॉट बी अ मोर इस्लामिक कंट्री देन प्योर इस्लामिक कंट्री, बिकॉज दिस इज एन आर्ग्यूमेंट विच शुड डेफिनेटली वी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेंटेनेबल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। दूसरा, इसके बारे में ना बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं, और जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तो उसमें कई चीजों में अगर आप देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि इसका एक पर्पज ये है कि सारी जो है प्रथाएं बंद कर दी जाएंगी। अभी जैसे कुछ लोगों ने बोला कि सिख कम्युनिटी कह रही है कि हमें भी जो है हमारी शादी का तरीका चेंज हो जाएगा। इस्लाम में कहा जा रहा है कि इस्लाम का जो है आपका जो निकाह का तरीका है, वो निकाह का तरीका चेंज हो जाएगा, और उसकी जगह कोई सप्तपदी जैसी चीज जो है लागू कर दी जाएगी। तो इस तरीके की बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो इसमें हम, मुझे लगता है किसी के मैरिज में जो कस्टम्स हैं उसको वो रेगुलेट नहीं करता। जिसकी मैरिज की जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं वो वैसे ही फॉलो की जाएंगी। हाँ, कुछ चीजें अलग हैं जो इमोरलिटी की कैटेगरी में आती हैं, या जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में नहीं आती, उनको जरूर रेगुलेट करके यूनिफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि एज ऑफ मैरिज, वो हर धर्म में अलग अलग क्यों होनी चाहिए? तो जैसे कि अभी आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट एंड द पॉक्सो एक्ट, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तो किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। ये कोई कैसे कह सकता है कि 4 लोगों पे लागू होगी, 2 लोगों पे लागू नहीं होगी? दिस इज समथिंग विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो ये जो इस तरीके की चीजें फैलाई जा रही है ना, जो मिसकम्युनिकेट किया जा रहा है कि क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो रिलीजियस थॉट्स हैं उसको इम्पोज किया जा रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि आपने एक सिमिलर रूल बनाए हैं, और सिमिलर रूल आपने किस चीज का बनाया, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें मैरिज आएगा, इसमें डिवोर्स आएगा, इसमें अडॉप्शन आएगा, इसमें सक्सेशन आएगा, इसमें मेंटेनेंस आएगा, और इसमें इनहेरिटेंस आएगा।
तो मैरिज में तो मुझे इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हर रिलीजन की मैरिज उनके अपने कस्टम्स के हिसाब से गवर्न होगी। जो डिफरेंस आएगा वो कुछ चीजों को लेकर के आएगा, जैसे कि एज ऑफ मैरिज को फिक्स करना, साथ ही साथ मैरिज के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी करना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज डिवोर्स को लेकर के आएगा। जैसे डिवोर्स में अभी हम क्या देखते हैं कि हिंदू लॉ में अगर आप देखेंगे तो डिवोर्स का राइट जो हिंदू महिला का है वो हिंदू पुरुष से भी ब्रॉड है। लेकिन अगर आप मुस्लिम महिला को देखते हैं तो उसके पास एक तरीके से डिवोर्स यानी एग्जिट का ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर जब हम डिवोर्स एक्ट को जब यूनिफॉर्म करेंगे तो लगभग सब सेम ग्राउंड सबको दिए जाएंगे। और ये अभी भी होता है जब हम स्पेशल मैरिज एक्ट को देखते हैं, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट आपके ऊपर लागू हो इसके लिए जरूरी है कि आपका रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट में कराया गया हो। तो यहाँ पे सवाल ये है कि अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के लिए अगर एक यूनिफॉर्म डिवोर्स ग्राउंड बना दिया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि जैसे आप देखिए खुला होता है इस्लाम में, खुला बहुत मुश्किल होता है। इसको इसमें जो मुस्लिम महिला होती है उसको डिवोर्स बड़ी करना पड़ता है, पेमेंट करती है अपने हस्बैंड को कि पैसा लेके मुझे छोड़ दो। इसी तरीके की और भी हलाला टाइप की जो प्रैक्टिसेस है, तो इस तरीके की जो भी प्रैक्टिसेस है जो अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, या जहाँ पे एक वन साइडेड अप्रोच देखने को मिलती है कि मेल को बहुत ज्यादा राइट है, फीमेल को कोई राइट नहीं है, उसको एक तरीके से ना जेंडर इक्वलिटी के लेवल पे ले करके आना, ये जो है एक इम्पोर्टेंट ये यूसीसी का पार्ट होगा। और सेम चीज आपके मेंटेनेंस में लगेगी। अब मेंटेनेंस में अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी 125 भी इस्लामिक लॉ में ये बोलते हैं कि हम इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो एक जो मुस्लिम लड़की होती है जिसको कि उसके हस्बैंड ने डेजर्ट कर दिया यानी छोड़ दिया, वो मेंटेनेंस कहाँ से लेगी, उसके बच्चों की देखभाल कहाँ से होगी। और हम लोग जब ग्राउंड पे काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं जहाँ पे एक डिप्राइव्ड या विक्टिम है जो कि मुस्लिम है वो, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो कहाँ से जा करके रेमेडी ले। तो एटलीस्ट अगर हम उसको इस बेसिस पे प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं कि उसका लॉ उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और हमारा लॉ उसके ऊपर नहीं लगता है, तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इन अ डेमोक्रेटिक एंड अ सेकुलर कंट्री। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो मेंटेनेंस जैसे इश्यूज हैं उससे एक यूनिफॉर्मिटी लेके आया जाए। जैसे सीआरपीसी के 125 सबको अवेलेबल क्यों नहीं होना चाहिए, तो क्या हम इसको सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल बना सकते हैं क्या। इसी तरीके से आपका एडॉप्शन है, एडॉप्शन अब उसमें जाना थोड़ा सा टेक्निकल होगा इसलिए मैं जाऊंगी नहीं उसमें। पर जैसे कुछ इस्लामिक लॉ में अडॉप्शन अलाउड नहीं है, वहां पे आप वहां पे आपका अडॉप्शन तब होता है जब आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कानून के थ्रू जा करके करते हो। अदरवाइज उनका पर्सनल जो लॉ है वो अडॉप्शन को अलाउड नहीं करता है। तो लेकिन गार्जियनशिप को अलाउ करता है। तो क्या अडॉप्शन अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति करना चाहता है तो क्या उसको अडॉप्शन अलाउड नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज हैं। और यहाँ पे हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमारे पास एक रोल मॉडल है। और वो रोल मॉडल क्या है, वो रोल मॉडल है गोवा का। गोवा हमें पता है कि गोवा में एक यूनिफॉर्म कॉमन गोवा की सिविल कोड चलती है जो पोर्तुगीज ने बनाई थी, एंड दैट इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन द पर्सन बिलोंगिंग्स टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। तो गोवा हमारे पास एक मॉडल है। वहां पे अगर आप देखेंगे तो वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स भी बहुत अच्छे हैं और वो काफी लेंदी लॉ है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर एक तरीके से गोवा में एक फॉर्म में चल रहा है तो बाकी हिस्से में वो लागू क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि लागू करने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी जरूर है जिसपे कि एक डिस्कशन होना चाहिए। और डिस्कशन इसलिए होना चाहिए कि जो अगर किसी रिलीजन की कुछ स्पेशलिटी है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे सपिंडा मैरिजेस हैं, प्रोहिबिटेड मैरिजेस में कितनी कौन सी डिग्री की ऐसी मैरिजेस होनी चाहिए जो कि प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। अब अगर आप इसमें हिंदुइज्म में देखेंगे तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक जाती है कि आपको शादी नहीं कर सकते हो आप सगोत्रा मैरिज प्रोहिबिटेड है, सपिंडा मैरिजेस प्रोहिबिटेड है। इस्लाम में डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड मैरिजेस होती है। इसी तरीके से अलग अलग रिलीजन चीजें हैं। तो प्रोहिबिटेड मैरिज की डिग्री आप अपने रिलीजन के हिसाब से भी चला सकते हो। तो फाइनल जब ड्राफ्ट आएगा तो फिर ये चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअली में वो क्या। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रोहिबिटेड डिग्री को भी अपने रिलीजन के हिसाब से ही चलाए चलने देना चाहिए। आप अपने अपने रिलीजन के हिसाब से फॉलो करो, लेकिन कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसपे कि जैसे इंसेस्टस मैरिजेस जो है वो कहीं भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। आप इंसेस्ट को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो कुछ कुछ चीजें जो आप अगर देखोगे तो आपके स्पेशल मैरिज एक्ट में भी रिस्ट्रिक्शंस है, आपके इस्लामिक लॉ में भी रिस्ट्रिक्शन है, हिंदू लॉ में तो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। तो वो कुछ अपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से होगा या कुछ कॉमन ग्राउंड बनाए जाएंगे
वो हम देख सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो बेनिफिट है, वैसे ही अगर आप इनहेरिटेंस और सक्सेशन में भी आप देखेंगे, तो जैसे हिंदू वुमेन को तो मेल के इक्विवेलेंट राइट प्राप्त है, लेकिन बाकी रिलीजन्स में ऐसा नहीं है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारी महिलाओं को एक जैसे इक्वल राइट क्यों नहीं मिलने चाहिए, जब हमारा संविधान कहता है कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। So this is something, these are the certain things which are, extremely important and relevant for all purposes। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पे एक अच्छे खासे डिस्कशन की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि शाहबानों के केस से लेके सायरा बानो के केस तक समय काफी बदल गया। और अभी मैं एक सर्वे भी देख रही थी, मुस्लिम कम्युनिटीज में किया गया, वहां पे 69% महिलाएं जो है वो चाहती हैं कि मुस्लिम लॉ का रिफॉर्म हो। अगर आप एज वाइज उसको डिवाइड करोगे तो 80% जो आपकी यंग जनरेशन है वो ये चाहती है कि मुस्लिम लॉ रिफॉर्म हो। तो अब रिफॉर्म का टाइम है, रिफॉर्म होना भी चाहिए, समय के साथ चीजें जो है वो बदलनी भी चाहिए। और इस तरीके की चीजें, एक देश एक विधान, ये सबके ऊपर लागू भी होना चाहिए। किन्हीं दो महिलाओं में सिर्फ इसलिए अंतर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो एक डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्राइब्स को लेकर के भी काफी सारी चीजें फैलाई जा रही हैं कि ट्राइब्स के राइट ले लिए जाएंगे, उनके कस्टम्स को खत्म कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी है उसके जो चेयरमैन है मिस्टर सुशील मोदी जी, उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो ट्राइब्स हैं इसको हम अलग तरीके से कंसीडर करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें भ्रम ज्यादा फैलाया जा रहा है। एक्चुअल में जब भी इसका फॉर्मेट सामने आएगा तो इसमें चीजों को बहुत ही क्लियर तरीके से जो है वो रखा जाएगा। Thank you, ma'am, for that insightful lecture and for touching upon so many important issues. As you rightly said, there have been divisions in the Indian society from the colonial times. Right now, women are at the receiving end of the injustices perpetrated by personal laws. We need to look at this issue from the perspective of the Constitution. Progressiveness is a part of our Constitution, and we can no longer afford to have discriminatory laws. And also, as Dr. Sharma had pointed out earlier, already 95% of the laws in the country are uniform, and a common civil code cannot be a far-fetched goal. Now, ma'am, if you're okay, can I open the floor to questions? My only thing was that the issues which were raised in the Constituent Assembly, in these 71 years, we must have addressed most of those issues. So it should be made clear to the common people that all those issues which were raised there have largely been raised. And I'm glad to know that in many countries where sizable population of Muslims are there, still they are following that country's code. So why not in India? So in very simplified form, we should make people aware that what it will cover and what it will not. So with that, I think my issues are addressed. Thank you. Prime Shivaji Sarkarji, do you have a question? Both the speakers have spoken very well. मैं उनसे काफी चीजों से सहमत हूँ और दोनों का ही जो टोन रहा है बेसिकली कि not to go for a wholesale changes in the laws but do one by one. So मैं यही समझना चाहूंगा कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, पार्टली एक्चुअली एज वी all the speakers discussed, कि Hindu code bill and the whatever the Hindu denominations are there, and there are many, they have been taken care of. Most others, they also have issues have been taken care of in one way or other. जिनको टेक केयर नहीं किया गया है, क्या अभी हम सिर्फ वहीं तक अगर अपने आप को सीमित रखें और उतने हिस्से को करें, बिकॉज इट इज a humongous task, I believe. If you open up this entire code to be changed and everything, that is going to be a very large task, large study, and again, it will be a very time consuming. Hindu code bill also didn't happen in a day. It also took, you say, minimum of almost 20 years to codify that, and despite many opposition. So मेरा यही समझना है कि अगर इस वक्त हम जो चीज नहीं हुई है तो पहले वहां तक करें, क्योंकि if you go by Article 44, Article 44 says virtually what it means is state should go as per the convenience of the time. वो ये नहीं, it is not a mandated provision कि हर एक करना ही करना है.
So now the issue is virtually, and another aspect I would must say, I've been interacting with many people in with the Islamic community also, in Aligarh also, and Aligarh University, they have done a very good study also on the UCC. I've seen that also. So वहाँ पे जो है among the elite and even others, I could say, there is a virtually a kind of a consciousness that there should be reforms in their laws, because they also realize there are lots of anomalies in that. So हम अगर अभी करना है हमें, our aim is very pious, पर उस पायस एम को पाने के लिए अगर उसका हम ज्यादा फैलावा करेंगे, जैसे अभी हमने ट्राइबल्स को छोड़ दिया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम किया अगर हमने छोड़ दिया है अभी, एटलीस्ट दैट इज अ सजेशन। तो हम उसको अगर कन्फाइन करके एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जहां ये काम नहीं हुआ है उसको अगर हम करते हैं, तो मुझे लगता है कि दैट मे बी मोर फ्रूटफुल देन मेकिंग इट ए वेरी वाइड अनमैनेजेबल practice, which perhaps we may not be again achieved. So why not confine into it? And so far, I believe the particular community, they are prepared for many of the things which they do not like themselves. Thank you so much. I'm Srinivasan from Chennai. I have only small two questions. One is there any Supreme Court judgments in favor of UCC, Constitutional Bench? Number two, I was told that second Guruji Golwalkar was against UCC. I'm not sure whether it is right or wrong, or whether it is a fake news. What is the stand of RSS on this particular UCC? Thank you very much. मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, मैं जानना चाहता हूं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद इसके क्या सोशियो कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या होंगे, क्योंकि एकाएक इमीडिएट साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होंगे, कुछ महीनों कुछ सालों तक रहेंगे, बहुत सारी कस्टम्स है उनको फॉलो करेंगे, तब साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे, अभी नहीं होंगे। और अभी सोशल कल्चरल इफेक्ट होंगे, एक बात। दूसरा, आपने बार बार जो माइनॉरिटी की बात की, लार्जेस्ट माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी, उन्हीं का लॉ बना हुआ मुस्लिम लॉ, तो जो और माइनॉरिटीज हिंदुइज्म से अलग हो गई है, सिख, बुद्ध, जैन या पहले से यहूदी या पारसी, क्या उनके लॉ तो बने हुए नहीं है, तो क्या उन पे लागू होगा? तो चूंकि इसका आधार लॉ का कल्चरल है, साइकोलॉजिकल है, आपने सारे लीगल और आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट बताए, तो मेरा प्रश्न ये है, मेरा ऑब्जर्वेशन भी है, तो आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जहां तक एक प्रश्न है कि आरएसएस का क्या स्टैंड है, तो मेरा बिल्कुल मानना क्लियर है, आरएसएस बिल्कुल फेवर में है यूसीसी के, और कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जब हम बात करते हैं देश की और देश की तरक्की की, देश की उन्नति की, तो संगठन आरएसएस जैसा तो उसके खिलाफ होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहां तक दूसरा सवाल था कि इसमें अभी हम कुछ इसको सेलेक्टिव लें या कुछ नहीं, कुछ छोड़ दें, तो सर मेरा बिल्कुल इसमें एक मत ये है कि सेलेक्टिव का प्रश्न ही नहीं है। जहां तक सवाल है कानूनों की, बाकी सभी कम्युनिटीज के लिए ऑलमोस्ट लॉ काफी प्रोग्रेसिव हो चुकी हैं। हाँ, जैसे क्रिश्चियन लॉ में भी है कि महिलाओं को 2 ग्राउंड्स प्रूव करने पड़ते हैं डिवोर्स लेने के लिए, और पुरुष को सिर्फ 1 ग्राउंड प्रूव करने की जरूरत है, तो वो डिस्पैरिटी है। मेरा ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो कस्टम्स को कोई टच करने चाहिए, ना ही जैसे सपिंदा की बात करी है डॉक्टर सीमा ने, सपिंदा जैसा प्रश्न बाकी सारे लॉज में भी है, मुस्लिम्स में भी है, बहुत सारी उसमें है कि जहां पर कुछ हमारे जो रिश्ते हैं उसमें शादियां नहीं हो सकती, प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी नहीं हो सकती, तो वो चीजें रहेंगी साथ में। जहां तक यूसीसी की बात है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि कानूनी तौर पर उस शादी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यूसीसी ने सिर्फ उन्हें एड्रेस करना है। जैसे कि हम बात करें कि शादी हुई एक महिला पुरुष के बीच में, अब शादी में चाहे वो सप्तपदी से आपने करी है या चर्च जाके करी है या महिलाओं की कंसेंट लेकर मुस्लिम निवास से करी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। शादी का जो कॉन्सिक्वेंसेस यूसीसी में होना चाहिए वो सिर्फ ये है कि शादी एक ही होगी, मोनोगैमी होगी। शादी के बाद महिलाओं के क्या अधिकार हैं, क्या अगर उनके आपस में नहीं बनती, वो अलग रहते हैं, तो क्या मेंटेनेंस इस महिला को मिलेगी या नहीं मिलेगी, गुजारा भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर वो साथ रहना डिसाइड नहीं करते हैं,
तलाक की बात तक पहुंचती है, तो तलाक के क्या तरीके होंगे? क्या म्यूचुअल कंसेंट लगेगा उन दोनों के लिए? क्या सेम ग्राउंड्स दोनों को एप्लीकेबल होंगे, जिसमें क्रुअल्टी की बात करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं, एडल्टरी की बात करते हैं, बहुत सारे ग्राउंड है डिवोर्स के। क्या वो उन दोनों को बराबर लगेंगे या नहीं लगेंगे? उसके बाद प्रश्न आता है सक्सेशन का, कि अगर किसी के माँ बाप की मृत्यु होती है, पति या पत्नी की मृत्यु होती है, तो अगर प्रॉपर्टी है जिसकी विल नहीं करी गई है, अब जैसे विल अगर है तो विल से रूल जाएगा सारा, लेकिन अगर विल नहीं है किसी की, तो क्या उस पत्नी को या उस बेटी को अधिकार बराबर का है या नहीं है? क्या उसे बच्चा गोद लेने का अधिकार है या नहीं है? क्या वो नेचुरल गार्जियन है या नहीं है? यूसीसी सिर्फ इन बेसिक चीजों को, क्योंकि ये ही तो महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट करती है, तो इन सब का हमें साथ में ही देखना पड़ेगा। बेसिकली यूसीसी इज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी रिलेशनशिप्स। और जहां पर्सनल लॉस की बात करते हैं सर हम, तो सिर्फ शादी ही नहीं, वहां माँ बाप की भी जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही हैं लड़कियां, उसका भी प्रश्न आएगा। तो वो सारा एक साथ ही हमें एड्रेस करना पड़ेगा। इसको हमें दो तरह से बांटना चाहिए, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मैरिज के, या डॉटर होने के, या माँ होने के, वो क्या है। और दूसरी चीज जो छोड़नी है हमें, जो मेरे हिसाब से छोड़नी चाहिए, कस्टम्स हमारे क्या है। शादी में अब हमारे यहाँ मेहंदी लगाने की रस्म होगी या नहीं होगी, हल्दी लगाने की रस्म होगी या नहीं होगी, या कोई और रस्म, वो सब अपने फ्री हैं। सारी कम्युनिटीज फ्री हैं अपने अपने हिसाब से अपनी जो फंक्शंस है मैरिज की, जो रिचुअल्स है वो करने के लिए। यूसीसी इज ओनली अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स। तो ये एक चीज रहेगी इसमें। और जहां तक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट ऑफ यूसीसी, तो सर देखिए, इम्पैक्ट की जहां तक बात है, कानून बनते हैं इमीडिएटली, हमें लगता है बिल्कुल सही आपने कहा कि एक लीगल लॉ बनाना एक अलग चीज है, और उसको इम्प्लीमेंट करना और लोग उसे आत्मसात करें, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए सर, जब ये लॉ बना था ट्रिपल तलाक वाला भी, तब आपको याद होगा डिबेट्स ये आई थी कि भाई अगर आप जेल भेज देंगे तो फिर वो कैसे उसका गुजारा करेगा, ये बहुत सारी डिबेट्स आई थी। लेकिन अब आप देखिए, सर्वे देखिए और डेटा देखिए, उसके बाद 80% से ज्यादा ट्रिपल तलाक में कमी आई है। कानून बनते हैं, उनका डर बैठता है, और धीरे धीरे जब चलते हैं चीजों को, और जब महिलाओं को उसके फायदे होने लगेंगे, तो धीरे धीरे हम उस चीज में शामिल होते जाते हैं। अब जब हिंदू कोड भी लाया था, जो सर बात करने 20 साल लगे थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने उस बात पे रिजाइन ही कर दिया था मिनिस्ट्री से, और बहुत बड़ा उनका वो कदम था। डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत योगदान है महिलाओं को उनके आज के अधिकार देने के लिए। तो जब हिंदू कोड बिल में हमें टाइम लगा, क्योंकि बिल्कुल अनकोडिफाइड से हम लोग कोडिफिकेशन की तरफ बढ़े थे, बिल्कुल हम जहां पॉलीगैमी थी हिंदुओं में, वहां मोनोगैमी की तरफ हम बढ़े, वो बहुत कठिन था। लेकिन आज की जो स्थिति है, जब हम देखते हैं 21st सेंचुरी में, बहुत सारी चीजें बेसिकली हमारी एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर यूसीसी आता भी है, तो जैसे जो हमारा मुस्लिम जो हमारी कम्युनिटी है, जो बहुत ज्यादा हम जिसे पिछड़ा हुआ कहते हैं, अगर हम अधिकारों की बात करें, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा उन्हें अपने आप को। हाँ, मैं मुस्लिम पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब अधिकार हाथ से जाते हैं तब वो नेचुरली बहुत टाइम लगता है उस चीज को डाइजेस्ट करने में। लेकिन मुस्लिम महिलाएं जब वो देखेंगी इसके फायदे क्या हैं, और आज की डेट में भी जैसे डॉक्टर सीमा सिंह ने कहा कि सर्वे जैसे आ रहे हैं, वो मुस्लिम महिलाएं फेवर कर रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत नेगेटिव हमें सोशलॉजिकल और सोशल या कल्चरल इम्पैक्ट होना है। रेदर मुझे लगता है अगले 2-4 साल में इसकी हम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने वाले हैं। एक मिनट, मुझे बस एक चीज बोल रही थी, मैडम ने उसे ज्यादा चीजें कवर कर दी है। जो सर अभी किसी ने पूछा था ना कि क्यों नहीं मुस्लिम लॉ को कोडिफाइड कर देते हैं, तो इसमें देखिए कई सारे सजेशंस भी आ रहे हैं। एक सजेशन ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम क्यों रखा जाए, और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने टर्म यूज किया कॉमन सिविल कोड, कह रहा है इंडियन सिविल कोड, कोई कह रहा है। उसमें प्रॉब्लम जो आ रही है टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में ना, वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द लिखता है, तो या तो हमें जाके वहां पे संविधान को संशोधित करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि इसीलिए आप लगातार जजमेंट्स में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द देखते हैं। अब ये बात एक अलग है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या स्वरूप हो। दूसरी इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है
कि लगातार ये बात की गई कि जब समाज तैयार हो, कुछ लोगों को हमेशा ये विरोध होगा तो कुछ चीज को इसलिए छोड़ दोगे कि समाज तैयार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये देखिए 47 में हम आजाद हुए और 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि सबसे बैकवर्ड कोई कम्युनिटी है तो मुस्लिम कम्युनिटी है। तो ये 2006 में भी ये रिपोर्ट क्यों आ रही है? तो सवाल ये है कि क्या अपॉर्चुनिटी की कमी है या फिर मेंटेलिटी में कहीं ना कोई परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो दो चीजें होती हैं, जब समाज चाहता है तो चीजें परिवर्तित होती है और उस पर लॉ आता है। दूसरा ये होता है कि जब आप लॉ लेकर के आते हैं ना तो धीरे धीरे समाज बदल जाता है। तो यहाँ पे एक लंबा इंतजार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की लगातार बात करी। अभी जो रिसेंट सारा बानो का जजमेंट आया था उसमें भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने पहले भी बोला, इनके जो फादर थे, और अभी भी साफ साफ बोला गया है कि क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाता। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के डर बहुत बहुत सारे क्रिएट किए जा रहे हैं। पर इसमें मोटा मोटा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में आती है कि इसमें मोटी मोटी गाइडलाइन बनाई जाएगी और हर रिलीजन के जो कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं उसके लिए कहीं ना कोई एग्जम्पशन जरूर क्रिएट किया जाएगा। उसके बिना ये प्रॉपरली क्रिएट नहीं हो सकता है। जैसे आप स्त्रीधन को रखोगे ही रखोगे, आप मेहर को रखोगे ही रखोगे, वो कहीं नहीं जा सकती है। आप सपिंडा को रखोगे, आप सगोत्र को रखोगे, आप फोस्टर मदर को रखोगे, तो चीजें चेंज नहीं हो सकती। आप किसी भी तरीके का यूनिफॉर्म लॉ लेकर के आओ। तो मेरा ये मानना है कि जो जब इसका फाइनल स्वरूप निकल करके आएगा और जहां तक हिंदू लॉ को कोडिफाइड करने की बात की गई, उसमें एक चीज आप याद रखिएगा, वो जरूर हिंदू कोड बिल था, उसमें हमारे शास्त्रीय हिंदू परंपरा से कुछ भी नहीं लिया गया, सप्तपदी और सपिंडल सगोत्र मैरिज को छोड़ करके। जैसे डिवोर्स का जो एक्चुअली वो क्रिश्चियन एक्ट की रिप्लिका थी जिसको हिंदू लॉ से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था और उसको धीरे धीरे जो है हमने जेंडर इक्वलिटी के नाम पे एक्सेप्ट कर लिया। तो जो सप्तपदी वाला जो एस्पेक्ट है हमारा, वो सब चीजें कुछ फंडामेंटल जो हमारे कस्टमरी पार्ट थे उसको अगर आप छोड़ दीजिए तो एक्चुअल में हिंदू कोडिफाइड लॉ एक्चुअल में हिंदुओं का लॉ नहीं था, वो एक मॉडिफाइड लॉ था अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द प्रोग्रेसिव नेशन। तो वही चीज है कि और इसीलिए आप बहुत सिमिलरिटी देखोगे इंडियन सक्सेशन एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, इंडियन डिवोर्स एक्ट में, हिंदुओं में जो डिवोर्स की ग्राउंड है, स्पेशल मैरिज एक्ट में, क्रिश्चियन एक्ट में, पारसी एक्ट में, इनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। एकदम सेम नहीं है लेकिन इनमें सिमिलरिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहती थी। लेकिन इनके कंपैरिजन में अगर आप शरीयत को देखोगे जिससे इस्लामिक लॉ चल रहा है वो बहुत ही अभी भी अलग फुटिंग पे है, इसलिए जो है ये चेंज डिफरेंस आ रहा है। मैं डॉक्टर सीमा सिंह को ऐड करना चाहती हूँ। जब हिंदू लॉ की बात थी तब बहुत ज्यादा हिंदू मेल्स में बहुत ज्यादा अपोजिशन था इसके खिलाफ और ये बिल्कुल आखिरकार रिजाइन करना पड़ा डॉक्टर अंबेडकर को। लेकिन नेहरू जी को ये पोस्टपोन करना पड़ा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदू कोड बिल। लेकिन जब एक बार लॉ बन गया उसके बाद देखिए आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। अब डिवोर्स का हमारे हिंदूज में कोई कंसेप्ट ही नहीं है, हमारे धर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो है ही नहीं। तो रैशुअली ये मॉडिफाइड फॉर्म्स है। और जहां तक बात है सपिंदा रखने की या मेहर रखने की, वो कहीं भी लीगल राइट्स को अफेक्ट नहीं कर रही हैं। मेन एम्फेसिस है कि व्हाट आर दी राइट्स ऑफ अ वुमेन when she is a daughter, when she is a wife, when she is a mother. So that kind of aspect should be taken into consideration uniformly. And as far as the name is concerned, I don't think that there is any issue. It can be uniform civil code, it can be common, it can be anything. But the मेन पर्पज है उसकी आत्मा वही जानी चाहिए कि महिलाओं को जब हम जहाँ अधिकार की बात करते हैं, जहाँ लिटिगेशन लड़ाई झगड़े की बात आती है, वहां पर समानता है, वही चीज मेन है। बाकी आप अपनी प्रैक्टिसेस कैसे कर रहे हैं, मेहंदी रस्म कर रहे हैं, मेहर रस्म कर रहे हैं, स्त्री धन की बात कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं महिला को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। और साथ में ही देखिए हमारे यहाँ जो न्यूट्रल लॉज हैं, जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस है, वहाँ एडॉप्शन का सबको अधिकार है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वहां पर मेंटेनेंस का है, यहाँ तक कि रेजिडेंस का अधिकार है महिलाओं को। तो वो सारे न्यूट्रल लॉज हैं जो आज की डेट में भी सारी महिलाओं के लिए एप्लीकेबल है। 125 सीआरपीसी तो है ही, जो शाहबानों में क्वेश्चन हुआ था, उसके बाद सारे के न्यूट्रल लॉज ऑलरेडी हैं। तो बात यही है कि अभी आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हम जो मुस्लिम समाज भी है वो काफी हद तक ऊपर पहुंच चुका है और उन्हें पता है कि किस तरह की कानून बनने हैं, क्या होना है, और इसको बनाना ही सही समय है क्योंकि बनने के बाद उसको हमें एक्सेप्ट करना आसान होता है
जैसे सीमा जी ने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। दो तरीके होते हैं, एक तो समाज में कोई चीज आए और उसको हम लॉ बनाए, और या लॉ बना के समाज को सुधारा जाए। अगर 75 साल में समाज नहीं सुधर रहा है तो फिर कानून की मदद हमें लेनी ही होगी। 2-3 साल का ट्रांजिशन पीरियड रहेगा और हर चीज सेटल हो जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि हम सबको ही प्रयास करना चाहिए, जैसे हम कर सकते हैं अपने अपने लेवल से, कि आज की स्थिति में इस कानून को बनना ही होगा और बनना ही चाहिए। तभी हम लोग आगे तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं। जब सारे विश्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड हैं, तो भारत में ही ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पर कोई भी सुधार करने के लिए हमें 50 तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, राइट टू रिलीजन जैसे झूठे आर्गुमेंट्स को देखना पड़ता है। क्यों हम यहाँ हर जगह सबमिसिव होकर हमारी सरकारें घुटने टेक देती हैं? क्यों हम महिलाओं के लिए और देश के उत्थान के बारे में सोचें? We have with us here Durganand Jaji, who has authored two very important reports, the Global Minority Report and the India Minority Report. So, would you like to share your views on this issue? Namaskar. Actually, I would like to say that problem is that the regions which make Muslims backward, they want to remove it. How it is possible? If Muslim community would not like to remove regions of backwardness, they cannot grow. I When I was preparing India Minority Report, I found that backwardness of Muslim community is basically social backwardness of the community. Social backwardness of community means work participation rate of Muslim women was very low. Literacy rate of Muslim women was also very low. So overall uh, performance of Muslim community on development parameters was low. That's why I recommended that if government wants to develop Muslim community, they they should focus on social aspects of the community. So because without social reformation of the community, Muslims cannot grow. So far as such a community is concerned, my opinion is that it is a misleading report, and it mischievously, because of that report, a ministry was created. Because that ministry, what that ministry is doing, that ministry is not actually removing the reasons of backwardness of the Muslim community. They are actually nourishing that causes. So I think that UCC or many other things are very important, and government should go ahead. And terminology I had used for this mindset of to convey mindset of Muslim community, that was inclusive, exclusive paradox. Problem with the Muslim community was that they want to inclusive in everything, but there are certain areas where they want to remain exclusive. So it is not possible. If you want to inclusive in on developmental parameters, you cannot be exclusive on other aspects. If you want to inclusive, you have to be inclusive on all issues. Only then you can develop, you can grow. Sir, I would like to say one thing, that if we implement UCC, definitely majority of the social reforms will be done automatically. Believe me. That's right. That's right. Thank you, sir, for sharing your views. Now, Rakesh Kumar Pandeyji has raised his hand. Yes. I just wanted to say that the way probably this is being uh, circulated in the social media, जो जिसकी वजह से अपोजिशन ये ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऐसा मान बताया जा रहा है जैसे यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड आने वाला है. हाँ, रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट. दिस इज बेसिकली यूनिफॉर्म जस्टिस कोड. हम जस्टिस सबको सेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिस सबको मिले ये कोशिश कर रहे हैं. इस चीज को मुझे लगता है कि कई बार कहने की जरूरत है. ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है, सबका रिलीजन सेम नहीं बनेगा, सबके रिलीजियस प्रैक्टिसेस सेम करने की इसमें कोई कोशिश नहीं होगी. इस बात को हम जितनी बार कहें और जितनी बार समझा पाए, मुझे लगता है कि
हम फिर अपने मकसद में कामयाब हो पाए। धन्यवाद। Thank you very much for organizing, such a beautiful debate. But let me tell you another part of the story is that, spinda relationship and, there are many customs in Hindu marriage also, which are not common in North India versus South India or Northeast. Like in Meghalaya, boy joins the society of girl after marriage. Similarly, in Karnataka, some part of it, in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, the daughter is offered to mama, and that is called the best relationship in certain communities. Mama ke saath shadi hone ka. So let's not carried away by the what the practices are done in North India. And there is a clause in the law that any practice being followed since time immemorial that will continue. So that is the there. It is only to say to bring the whole system under uniform civil code. Like in Delhi, Hindu is required to register the marriage, and if marriage is not registered with the time, then there is a fine. But it is not happening other way around. So those things. Another is in Iraq. I lived in Iraq for 2 years, and at that time Saddam Hussein was the president. And what he has introduced that a talaq, if being given by a male to a female, then male has to leave the house immediately. Children, house, and anything belonging in the house, means maybe furniture and utensils, kitchen, everything will belong to those children and behind, apart from meher. So it is something, different society has got different cultures. So think that the government is trying to unify the, something is not there. What government is trying to do is that yes, there has to be a system where the adoption and this, gift, etc., that will be uniform. Whatsoever can the practices which will be separate, like we have Satvadi and they have, Nikah. So those things will continue. Only thing, halala will go away, like Sati Pratha has gone away from our Indian Hindu system, and like even this multiple marriages, bigamy has gone away from our, Hindu system. So same thing, government is trying to bring it. It will be polygamy will not be there in Muslim system also. Maybe my idea is like this. Thank you very much.